पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, घोस्ट हंटिंग, पोजेशन, एक्सॉर्सिज्म, ये सब सुन के हम लोगों को काफ़ी हॉरिफाइंग और स्कैरी बट एट द सेम टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। पर कभी कभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और यूट्यूबर्स कंटेंट की सर्च में कुछ ऐसी अनयूजुअल और बिजार मोमेंट्स कैप्चर कर लेते हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू मिडनाइट मेयर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रैंक एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं और वो अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल फ्रैंको टीवी पे अपलोड करते हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। एक रात फ्रैंक पेरू में स्थित एक हॉन्टेड सेमेट्री को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। वो अभी तक सेमेट्री में एंटर भी नहीं हुए थे और उन्होंने अपने कैमरा में कुछ बहुत ही अनयूजुअल कैप्चर कर लिया। I'm trying to get into the graveyard right now and I'm already seeing some activity on the inside. Once I'm inside, I should be good. Right around here, I saw somebody on the inside moving around. Trying to see if I could look. It could be somebody just visiting. Somebody's running next to me. See? See if I can get a little bit closer. Somebody's running next to me. आप देख सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई पर्सन अपने हाथ में कैंडल या किसी तरह का आग का सोर्स लिए सेमेट्री में घूम रहा है। इसके बाद फ्रैंक हिम्मत करके सेमेट्री के अंदर एंटर कर जाते हैं। I got something over there. Is that outside? No, that's definitely inside, I think. Hold on, let me get closer. Okay, so I can see some light on the other side of the graveyard. It's kind of far back there, though. I think it's coming from the corner wall. I don't know if they're visiting someone or what. What? I'm gonna Alright, I'm now recording off of another camera. There's about like 4 people or 5 people over there. I can barely see with this, so I'm gonna have to get a little bit closer. Are they praying? It looks like they're praying.
It's literally empty throughout this whole graveyard. There is nobody here. I think that's where the person with the candle went. And they were backed up in the corner over there. There is literally nobody throughout this whole graveyard. And they're backed up into the corner. Look, there's nothing here except for what's happening up there. There is nobody throughout this graveyard. I'm literally crouched up in this little corner over here hiding. सिमेट्री के दूसरे साइड पे 4-5 लोग जिनके पास किसी तरह का एक लाइट का सोर्स है, वो कुछ अजीब तरह के मंत्र पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। और आधी रात को सिमेट्री के अंदर ऐसी अनयूजुअल प्रैक्टिसेस करना बहुत ही सस्पिशियस है। I keep hearing noises behind me, but I'm not too quite sure what's going on over there. It is just dark. I can't see much. I'm trying to see what they were doing there, but I have to wait till they leave. Wait, I got movement over there. I think. Look, they're leaving. One, two, three, four. There was 4 people here. फ्रैंक एक कब्र के पीछे छुपकर उनके जाने का इंतज़ार करते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद भी फ्रैंक छुपे रहते हैं ताकि कंफर्म हो सके कि वो लोग दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। जब थोड़ी देर हो जाती है तब फ्रैंक उसी जगह पे इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं जहाँ पे वो लोग वो मंत्र पढ़ रहे थे। A lot quieter now. I know I have my lights on, but it's either I check this out or I don't. And I want to see what the heck that they were doing up here. It's actually getting colder tonight. I think they were back here somewhere. Because on the night vision footage, you can see a light reflecting off the wall here. There's a lot of trash inside this tomb. Look. What the hell is that? Well, I found where the lights were coming from. Looks like a voodoo doll. Sorry if I cut it here. I accidentally
press the button, but that looks like a voodoo doll. Okay, now I see it. That's a star. Let me see if I move this out of the way. I'm not touching the voodoo doll. That I'm not gonna touch. Nope. Stay in the circle. Alright, so I don't know what kind of stuff this is. Oh, look at this. What is that? Looks like some sort of stuff in there. So they were definitely doing something here. That is bad. And they lit up a whole bunch of candles. There's something burnt there on the side. If you look, see that? That kind of looks like something similar to what I seen at the other tombs at the other graveyard in Lima, Peru. I'm seeing like two things. I thought I saw something move over there, but that's a plant. And then that Mickey Mouse right there scared the hell out of me. I thought somebody was praying. I'm gonna use the K2 meter to see if I can get in contact with whatever's here. Let's get into it. ¿Alguien estás aquí? Is there anyone here? Can you get close to me? Puedes sacarte de mí. There was a lot of people here chanting. I got something right over here. I'm gonna leave it right here in the circle. Let's see what I get. Is there anyone here with me right now? ¿Alguien estás aquí conmigo? See? I got a small spike. Are you an evil spirit? ¿Tú eres malo? Holy shit. I just heard laughing. Look at that. It's pinging. Bueno, don't follow me. I'm gonna leave this area. No cerca de mí. Quédate aquí. Yo no quiero problema. I don't want any problems, pretty much. I'm gonna grab my K2 meter back. कुछ देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद फ्रैंक को एक वुडू डॉल और लकड़ियों से बना सैटानिक सिंबल भी दिखाई देता है। फ्रैंक सेमेट्री को थोड़ा और एक्सप्लोर करने की सोचते हैं। वो अभी सेमेट्री को एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि उन्हें एक ग्रेव की तरफ से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस ग्रेव की तरफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए चले जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि आगे चीज़ें और भी डार्क होने वाली हैं। I'm nervous because I legit thought I heard laughing again. I just got another sound up here. And people pass through in and out of here all the time. So I just have to make sure that whatever I do is as safe as I can possible. What the hell is that? Hola? Hola? What was that? Hola. Holy. I literally saw something peeking out at me right over here. Hola.
Hola? उसी ग्रेव के पीछे से फ्रैंक को कोई पीक करके देख रहा होता है। जैसे ही फ्रैंक उसकी तरफ दौड़ते हैं और उस ग्रेव के पास पहुंचते हैं, तब तक वो चीज़ वहां से गायब हो जाती है। तो क्या वो उन्हीं सस्पिशियस लोगों के द्वारा बुलाया गया एक डीमन था या कुछ और? कमेंट में ज़रूर बताइए। ओमागाटोकी फिल्म्स यूट्यूब चैनल के ओनर टोमो एंड हीरो जापानीज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट टोमो एंड हीरो को एक अपार्टमेंट के बारे में बताता है और कहता है कि उस अपार्टमेंट को वो बेचना चाहता है पर वो बिक नहीं रहा। और वो रियल एस्टेट एजेंट टोमो एंड हीरो को उस घर की हिस्ट्री के बारे में भी बताता है। कुछ साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें 3 मेंबर्स थे। 2013 में एक दिन द एंटायर फैमिली वाज मिसिंग। उनका सारा सामान उसी घर में था, पर उस फैमिली के लोग कहाँ गए आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता चला। वहाँ के जितने भी एजेंट हैं वो मानते हैं कि उस घर में कोई एविल एंटिटी रहती है, इसलिए वो एजेंट्स उस घर के आसपास भी नहीं जाते। वो एजेंट टोमो एंड हीरो को रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों उस घर में जाके इन्वेस्टिगेशन करें और पता लगाएं कि उस घर में क्या चल रहा है। टोमो एंड हीरो उसकी बात मान लेते हैं, पर वो एजेंट टोमो एंड हीरो को एक बहुत ही अनयूजुअल वार्निंग देता है कि जब भी वो उस घर में किसी भी डोर को ओपन करेंगे तो वो तुरंत ही उस डोर को बंद भी कर देंगे। टोमो एंड हीरो ठीक वैसा ही करते हैं। जब भी वो किसी डोर को खोलते तो उसी वक्त उस डोर को बंद कर देते। ちょっと戻るか。ほら、もう全部開いてるもん。ああ、確かに確かに。すっごい、ほんと、物がやばい。うん。いや別に何も変わったとかない。 टोमो एंड हीरो इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक रूम में एंटर करते हैं और उस रूम में कुछ ऐसा होता है जिसको वो लोग मिस कर देते हैं और शायद हम सब ने भी उसको मिस कर दिया। उस कमरे में कपड़ों के पीछे कोई छुपा होता है और उस रूम में कॉर्नर पे उसके लेग्स देखे जा सकते हैं। इसके बाद उन्हें उस घर के किसी रूम से एक रिंगिंग साउंड सुनाई देता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो साउंड अल्टर रूम से आ रहा है। अल्टर रूम एक ऐसा रूम होता है जो बुद्धिस्ट लोग अपने प्रेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर वो उस रूम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ से चीज़ें और डरावनी हो जाएंगी। वो उस रूम को इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि उस रूम का डोर हाफ ओपन्ड है। लेकिन उन लोगों को अच्छे से याद होता है कि उन्होंने उस डोर को अच्छे से क्लोज़ किया था, लेकिन वो इसे छोटी सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझकर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन उन्होंने और हम सब ने फिर से एक बहुत ही क्रीपी चीज़ को नोटिस नहीं किया। अल्टर रूम को एंटर करने के बाद जब वो अल्टर रूम का दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं, तब उस रूम के बाहर डार्कनेस में कोई खड़ा होता है। आप उस चीज़ को काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं।時刻は3時。ちょっと一回電気を消してみたいと思います。ちょっと今
僕の真後ろに気配を感じて、ちょっと後ろ振り返れないです。分かりづらいと思うんですけど、今僕の目の前はこのカメラの画面だけが光ってる状態、あと真っ暗。ちょっとこのまま定点にしてキッチンの方に行ってみたいと思います。अल्टर रूम को इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो उस घर की और जगहों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उन्हें अल्टर रूम के डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो अल्टर रूम का डोर ओपन होता है।ちょっと待って。वो रूम के अंदर जाके देख रहे होते हैं तभी ही heard a sound of a bell ringing from behind। जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं उन्हें डोर के ऊपर एक क्रीपी फेस दिखाई देता है। एंड दैट फेस was staring at him। उस फेस को देखकर वो बहुत ही डर जाते हैं। वो जल्दी से उस डोर को ओपन करके देखते हैं पर वहाँ कोई भी नहीं होता। तो तुम्हें क्या लगता है वो फेस उन्हीं फैमिली मेम्बर्स में से किसी का था या किसी और एविल एंटिटी का था? कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दी वीडियो टिल दी एंड। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।